Good morning, students. Today we are going to discuss the pie diagrams. The other types of diagrams we have already discussed in the previous classes. Today we will see what is pie diagrams and how to construct pie diagrams with the help of example. I will elaborate here. So first, pie diagrams is also known as circular diagrams or pie charts or angular diagrams. So all these names are of the pie diagrams. So we should know that there are different names. By different names it is known. So far now we know pie chart. Pie chart is the famous one that is used most often, and this is not new things. Actually, I think you can see the pie diagrams, pie charts in the books, in the graphics. You can see there at different places it is shown. So it is one of the most popular way to present the data. So generally it is used when data is shown in the form of percentage. So if any one component is broken into different parts in the form of percentage, then you will use the pie diagrams, pie charts. So it is clear that when any component, anything is broken into different parts, different components in the form of percentage. For example, if we want to break the literacy into two parts, male literacy and female literacy, okay, and that is given in the form of percentage, and we want to show it, we can use the pie charts. For example, if we want to use the unemployment and employment, okay, in the form of percentage, then we can show the we can use the pie diagrams. Similarly, when we want to show our expenditure, okay, total expenditure, total monthly expenditure, then there are several things, several items on which we spend the money. So there are so many items there. So but percentage of expenditure will be different for each components. So उस केस में हम लोग जो है पाई चार्ट को यूज कर सकते हैं एक्सपेंडिचर को दिखाने के लिए, कितना परसेंट जो है किस चीज के ऊपर में खर्च कर रहे हैं. तो उस केस में हम लोग पाई चार्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, एक इनकम है, इनकम टोटल हो गया, टोटल को हम लोग ब्रेक कर दे छोटा छोटा कंपोनेंट्स में कि कहाँ कहाँ उस इनकम को हम लोग खर्च कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जो है पैसा हम लोग यूज कर रहे हैं. तो इस केस में हम लोग उसको यूज कर सकते हैं. तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे कि कैसे हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे. So circles in pie diagrams can be drawn by making their areas proportionate to the values in the given data. सबसे पहले ये जानना है कि पाई डायग्राम हम लोग बनाएंगे वो सर्कल के फॉर्म में रहता है, सर्कल रहता है. और हम सभी को मालूम है कि जो आपको सेंटर होता है उसका मेजरमेंट आपको 360 डिग्री एंगल होता है. जैसे कोई लाइन ड्रॉन है और यहाँ पे एक पॉइंट है, यदि इसको आप मेजर करेंगे कि कितना एंगल है, तो ये आपको 180 डिग्री है, 180 डिग्री. और फिर आप इधर भी इसको देख लेंगे, मेजर करेंगे तो 180 डिग्री. सो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो आपको कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा. सबसे पहला चीज आपको जानना है कि एक पॉइंट का, एक सेंटर का जो एंगुलर मेजरमेंट होता है वो होता है 360 डिग्री. तो ठीक है, तो सर्कल्स के फॉर्म में रहेगा. और वहां जो हम लोग बनाएंगे, आपको एंगल जो बनाएंगे, जो डेटा का वैल्यू को हम लोग प्लेस करेंगे, वो आपको उस कंपोनेंट का वैल्यू के अनुसार होगा. ठीक है, जितना बड़ा वैल्यू होगा उसका एंगल जो है उतना बड़ा फॉर्म करेगा. द टोटल एंगल एट द सेंटर इज 360 डिग्री और 2 पाई. ठीक है, 360 को हम लोग 2 पाई भी बोलते हैं, और पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री. हम सभी मैथमेटिक्स में वी हैव लर्न दिस थिंग इन मैथमेटिक्स दैट वैल्यू ऑफ पाई इज फिक्स, दैट इज 180 डिग्री. So if we are writing the 2 pi, it means we are writing 2 into 180 degree, that is 360 degree. So therefore it is known as pie chart, pie diagram. Okay, from this name pi, it is known as pie diagram. Now pie diagrams are very popular in practice to show percentage breakdowns by portioning a सर्कल इंटू वेरियस पार्ट्स. ठीक है, तो पाई डायग्राम्स का जो है लुक होता है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा. तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं और फिर एंगल के अनुसार हम लोग यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज को, एंगल के अनुसार हम लोग डिफरेंट वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं. एक सर्कल बना करके उसको हम लोग यहाँ से डिफरेंट वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे दिखाती है. इस तरह से पाई चार्ट आप जो है देखे होंगे, बहुत सारे बुक में बहुत जगह आपको मिला होगा ये.
यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट को जो है इसको यहाँ पे रखा जाता है, अलग अलग कंपोनेंट्स को यहाँ पे रखा जाता है और इसका मेजरमेंट होता है 360 डिग्री होता है। नाउ स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई डायग्राम, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कंपोनेंट वैल्यूज एज ए परसेंटेज इरेस्पेक्टिव ऑफ टोटल्स। नो, सबसे पहला चीज जो आपको याद रखना है वो क्या है कि आपको एक्सप्रेस ईच ऑफ द कंपोनेंट्स वैल्यूज एज ए परसेंटेज ऑफ रिस्पेक्टिव टोटल। सबसे पहले जो भी आपको कंपोनेंट दिया हुआ है उसको हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं कि यदि आपका एक्सपेंडिचर की बात है तो मान लीजिए कि आपका जो मंथली इनकम है 1000 है, समझने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। आपका मंथली इनकम 1000 रुपया है और आप उसमें से 200 रुपया जो है आप खर्च कर लेते हैं। आप जो है 200 रुपया आप जो है इसका चॉकलेट बिस्किट खा लेते हैं, तो ये 200 जो है इसका यदि आप चॉकलेट बिस्किट खा लेते हैं इसके ऊपर में आपको खर्च होता है। आपका इनकम कितना 1000, तो कितना परसेंट आप जो है चॉकलेट बिस्किट के ऊपर में खर्च कर रहे हैं, तो इसको हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 200 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, इस तरह से आप कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2000 था, 2000 था, तो सबसे पहले ये देखिए 100 और ये 2 कट गया, फिर यहाँ पे 1 0 बचा, ये भी कट गया, तो कितना 20%। ठीक है, तो 20% आप जो है खर्च कर लेते हैं किसके ऊपर में, तो चॉकलेट बिस्किट के ऊपर में। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको आप कन्वर्ट करिए। यदि दिया हुआ है पहले से परसेंटेज के फॉर्म में तो ठीक है, यदि नहीं दिया हुआ है तो आप उसको परसेंटेज के फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या है, एक्सप्रेस ईच पार्ट और कंपोनेंट प्रोपोर्शनली इन डिग्रीज। नो, जो सेकेंड टास्क हम लोग करना पड़ता है वो ये करना पड़ता है कि जो परसेंटेज के फॉर्म में जो आप ले आए वैल्यूज को, अब उसको हम लोग डिग्री के फॉर्म में हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि जो सर्कल है वहाँ जो आप कोई जो आप यहाँ पे वैल्यू को प्लेस करेंगे तो ये आपको डिग्री के अनुसार, ठीक है, जितना बड़ा वैल्यू है उसका कितना डिग्री होगा, बड़ा वैल्यू बड़ा डिग्री होगा, छोटा वैल्यू छोटा डिग्री होगा, ये हम सभी जान रहे हैं। लेकिन आखिर कितना होगा, एक्चुअल मेजरमेंट उसका कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि आपको 180 डिग्री होगा, या फिर पूरा सर्कल में उसी को हम लोग प्रेजेंट कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग फिर उस परसेंटेज को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे डिग्रीज के फॉर्म में, 360 डिग्री के फॉर्म में। तो क्या करना होगा उसके लिए, कंपोनेंट वैल्यू इंटू 360/100। ठीक है, जैसे हम लोग को पिछला में क्या आया था, 20% कंपोनेंट वैल्यू आया था, तो 20 कर देंगे इंटू 360/100 इंटू 360/100। ठीक है, तो ये 0 0 खत्म हो गया, ये 0 0 खत्म हो गया। 72 डिग्री, 72 डिग्री, यानी कि हम लोग जो चॉकलेट बिस्किट के ऊपर में जो हम लोग खर्च कर रहे हैं उसको हम लोग जो पाई चार्ट में हम लोग दिखाएंगे तो उसको 72 डिग्री एंगल में उसको दिखाएंगे। जो होगा आपको वो आपको 72 डिग्री होगा, यानी कि आपको 90 से कम होगा, 90 से कम होगा लगभग, इस तरह से आपको बनेगा वो। यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के हेल्प से, हम लोग इंस्ट्रूमेंट मैथमेटिकल टूल्स के हेल्प से हम लोग इसको यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, कंपास लेकर के आप बना सकते हैं। तो 72 डिग्री यहाँ पे आपको एंगल हो जाएगा, और ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोर्शन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको जो एक्सपेंडिचर आपका है, जो आप स्पेंड किए मनी किसके ऊपर में, तो बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स के ऊपर में, जो भी आपको एग्जाम्पल हम बताएं। नाउ उसका क्या, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एप्रोप्रिएट साइज यूजिंग कंपास। नाउ हम क्या बताएं, सबसे पहले आपको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। सेकेंड क्या बताएं हम, सेकेंड आपको बताएं कि फिर उसको हम लोग डिग्री के फॉर्म में हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो जो भी वैल्यू है परसेंटेज फॉर्म में इंटू 360/100। यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखना है कि 360/100 को हम लोग 3.6 भी लिख सकते हैं। तो आप चाहेंगे तो शॉर्टकट में 3.6 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 360 डिवाइड बाय 100 जब आप करेंगे तो 0 0 कट गया, 36/10 हुआ, यानी कि 3.6 हुआ। तो हम लोग डायरेक्टली 3.6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा जो है आपको 360 ही लिखना है। उसका क्या, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एप्रोप्रिएट साइज यूजिंग कंपास, ड्रॉ अ वेरियस एंगल्स इक्वल टू द डिग्री रिप्रेजेंटेटिव कंपोनेंट। ठीक है, तो फिर कंपास के हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इसको डायग्राम में जो सर्कल है वहां पे आप उस वैल्यू को डिग्री के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं।
ना चलिए अब जो है हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कि कंस्ट्रक्ट अ पाई डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा अबाउट परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस इन दिल्ली। ना दिल्ली में एक जो घर बनाया जाता है तो उसका उस पर कितना खर्च पड़ता है उसको हम लोग ब्रेक कर दिए हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स में कि आपको ब्रिक्स के ऊपर में कितना खर्च होता है, लेबर के ऊपर में कितना खर्च होता है। तो चलिए उसको हम लोग पाई चार्ट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सब कंपोनेंट्स आपको दिया हुआ है जो घर बनाने में क्या खर्च होता है। तो लेबर के ऊपर में जो खर्च होता है वो 25% होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये ऑलरेडी परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, तो इसको हम लोग को परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर ब्रिक्स जो है आपको 15% एक्सपेंडिचर होता है, सीमेंट के ऊपर में 20% एक्सपेंडिचर होता है, स्टील के ऊपर में 15% एक्सपेंडिचर होता है, टिम्बर के ऊपर में 10% एक्सपेंडिचर होता है, सुपरविजन के ऊपर में 15% एक्सपेंडिचर होता है। तो ये अलग अलग जो है परसेंटेज के फॉर्म में इसको आपको कन्वर्ट कर दिया गया है कि लेबर के ऊपर में कितना परसेंट खर्च होगा, ब्रिक्स के ऊपर में कितना खर्च होगा। इसको हम लोग इसको पाई चार्ट के फॉर्म में लाएंगे। अब हम लोग को याद रखना है कि यहाँ पे जो आपका ये जो एक्सपेंडिचर है ये टोटल आपको कितना होगा, टोटल होगा 100, ठीक है, क्योंकि हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में यहाँ पे हम लोग दिखाए हैं और हम सभी को मालूम है कि परसेंटेज के फॉर्म में टोटल आपको 100 होता है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू 100 होता है, 100 के अंदर में ही आपको सब आएगा। तो इस सबको ऐड करने से 100% आपको आएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे इसको डिग्री के फॉर्म में ला रहे हैं। तो लेबर जो है इसको क्या किया 25 × 3.6 कर दिया। हम पहले ही बताए कि या तो आप 25 × 360/100 कीजिए, ठीक है। तो ये जनरली आपको 3.6 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 36/10 का मतलब होता है 3.6। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। सो 25 × 3.6 जिसका वैल्यू 90 डिग्री होगा। फिर ब्रिक्स का 15 × 3.6 54 डिग्री, सीमेंट का 20 × 3.6 72 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज को हम लोग डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए और फाइनली इस डिग्री को हम लोग एक सर्कल में जो है बना लेंगे। 90 डिग्री हुआ तो 90 डिग्री हम सभी को मालूम है कि इस तरह से 90 डिग्री आपको होगा। अब इस तरह से यहाँ पे इस तरह से, तो ये आपको क्या हो गया, लेबर के ऊपर में आपको खर्च हो गया, लेबर के ऊपर में, ठीक है। उसी तरह से फिर हम लोग यहाँ पे 54 डिग्री जो हम लोग यहाँ पे कंपास की हेल्प से यहाँ पे हम लोग एंगल बना लेंगे और जितना भी होगा उसमें हम लोग ब्रिक्स को सेट कर देंगे। फिर सीमेंट का आएगा, फिर सीमेंट का आएगा, फिर स्टील का आएगा। इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे जब टोटल को हम लोग ऐड करेंगे 360 डिग्री हो जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाया गया है। ये हो गया लेबर का 25% हो गया, 90 डिग्री एंगल उसका था। फिर आपको ब्रिक्स का है 15%, टिम्बर का है, स्टील का है, सीमेंट का है, सुपरविजन का है। चलिए हम लोग अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय पाई डायग्राम। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ दो आपको पाई डायग्राम को ड्रॉ करना है, फैमिली एक्स एंड फैमिली वाई। आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, फूड के ऊपर में ₹400 खर्च किया जा रहा है, क्लॉथिंग के ऊपर ₹250 खर्च किया जा रहा है, रेंट के ऊपर 150 खर्च किया जा रहा है, एजुकेशन के ऊपर में ₹40 खर्च किया जा रहा है, मिसलेनियस इंक्लूडिंग सेविंग 160 को खर्च किया जा रहा है, टोटल 1000। ये आपको टोटल है 1000, उसका इनकम जो टोटल है 1000 रुपया और 1000 रुपया में से इस तरह से वो खर्च करें। यहाँ परसेंटेज के फॉर्म में नहीं दिया, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सभी को हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, जैसे फूड है, फूड को हम लोग कैसे करेंगे, तो 400 डिवाइड बाय 1000 टोटल हो गया इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। तो हम लोग इसको 20 ये खत्म हो गया, उसके बाद ये आपको 10 40 बचा, यानी कि 40% हो गया। तो फैमिली एक्स जो है वो आपको 40% फूड के ऊपर में आपको स्पेंड कर रहा है, 40% वहाँ खर्च कर रहा है। उससे क्लॉथिंग में हम लोग क्या करेंगे, 250 करेंगे डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 करेंगे, ठीक है। हम सही 250 इंटू 4 1000 हो गया, 4 इंटू 100 25%, यानी कि क्लॉथिंग के ऊपर में कितना खर्च कर रहा है 25%। तो हम लोग देखिए इसके ऊपर 40%, इसके ऊपर में 25%, इसके ऊपर में 40%, इसके ऊपर में 25% खर्च कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर 360 डिवाइड बाई 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो 40 इंटू 360 बाई 100,
इस तरह से हम लोग इसको, तो 4 ये कट गया, फिर 4 0 0 यहाँ पे ये कट गया, तो 36 × 4 कितना हो गया, 36 × 4 कितना, 24 का 4 हो गया 144, यानी कि 144 डिग्री। तो 144 डिग्री आपको जो है इस सर्कल में यहाँ पे सेंटर पे आप बनाएंगे, और वो जो भी होगा वो आप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, तो फूड के ऊपर में खर्च होगा उसको रिप्रेजेंट। उसी तरह से क्लॉथिंग का 25% हुआ, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप जो यहाँ पे फैमिली, इसी तरह से फैमिली एक्स का फूड का, क्लॉथिंग का, रेंट का, एजुकेशन का सभी खर्च को आप जो है डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर फैमिली वाई का भी करेंगे, और फैमिली दोनों का अलग अलग पाई चार्ट आप बना देंगे। आप कभी कभी क्या देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए 400 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 400 डिवाइड बाय 1000 इंटू 360, इस तरह से भी डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे परसेंट के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट यहाँ पे हम लोग नहीं किए, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग 360/100 नहीं लिखे हम लोग। ठीक है, तो एक ही चीज़ है, या तो उस तरह से आप कीजिए या फिर इस तरह से आप कीजिए, क्योंकि दोनों एक ही बात है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यदि इसको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको क्या करेंगे, इसको 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 360/100, यही हम लोग अभी तक देखे हैं। तो ये दोनों कट गया, तो एक ही बात हुआ, ये ऊपर है 100, ये नीचे 100, दोनों कट गया। इसलिए आपको ये फार्मूला 400/1000 इंटू 360 डिग्री, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे जो है इस तरह से आपको यूज किया गया है। फूड देखिए ₹400 है, सो क्या किया, 400/1000 इंटू 360 डिग्री, 144 डिग्री। चाहे तो इस तरह से आप कन्वर्ट कीजिए, आप पहले परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर इसको 360/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर 3.6 से मल्टीप्लाई कर, जो कि प्रीवियस स्लाइड में आपको हम दिखाए कि इस तरह से आपको करना है। उसी तरह से क्लॉथिंग के ऊपर में 250 खर्च किया जा रहा है, तो 250/1000 इंटू 360 डिग्री, तो 90 डिग्री हुआ। रेंट के ऊपर में आपको 150 है, तो 150/1000 इंटू 360 डिग्री, 54 डिग्री। इस तरह सभी को कन्वर्ट कर लिया गया। फिर फैमिली वाई को भी उसी तरह से आपको कन्वर्ट किया गया, आप देख सकते हैं, और फिर इसको जो है पाई चार्ट में आपको दिखाया गया। यहाँ पे देखिए उसी चीज़ को आपको, इनकम को, फैमिली एक्स का जो इनकम है और फैमिली वाई का जो इनकम है, उसको यहाँ पे आपको कन्वर्ट किया गया पाई चार्ट के फॉर्म में। ठीक है, ये डिफरेंट कलर्स को आप यूज, जब पाई चार्ट बनाएंगे तो डिफरेंट कलर्स को भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आप ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाता है पाई चार्ट को ज़्यादा। ये डिस्क जो है, ये सर्कल जो है, उसको ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाने के लिए आप डिफरेंट कलर्स को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्स में आप डिफरेंट जो है सिंबल को यूज कर सकते हैं, जैसे डॉट 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 हो गया, स्टार हो गया, ठीक है, डैश हो गया, या पेंसिल को डीप कलर से आप शेड कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको जो है आप दिखा सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप इस तरह से आप बना देंगे, इसको लेबल कर देंगे, ताकि ये पता चल सके कि कौन सा कलर जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि यदि आप कलर नहीं दे तो कोई बात नहीं है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे उस चीज़ को आप लिख दीजिए। यहाँ पे ये जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फूड के ऊपर में, तो यहाँ पे आप फूड लिख देंगे या फूड लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे आप रेंट लिख देंगे। इस तरह से आप जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से आप पाई चार्ट्स को बना सकते हैं। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग क्या सीखे पाई चार्ट में, कि पाई चार्ट कैसे हम लोग बनाएंगे। तो पाई चार्ट में सबसे पहले कंपोनेंट्स को हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जो भी वैल्यू रहेगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपका इनकम है डेली 500, उसमें से आप 100 खर्च कर लेते हैं, तो इसको हम लोग, या फिर दूसरा वैल्यू आपको लेते हैं, पहला परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आपका इनकम है 500 डेली का, और उसमें से आप 50 रुपीज़ जो है आप खर्च कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, आप इसको कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो 50 डिवाइड बाय 500 इंटू 100। ठीक है, तो वो 0 कट गया, 5 10 यानी कि 10%, यानी कि 10% आप खर्च कर लेते हैं कोई चीज़ के ऊपर में। ठीक है, आप एक पेन खरीदने में, या फिर आप जो है कुछ खा लेते हैं उसका, तो वो होगा 10%। तो सबसे पहले परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, सेकेंड क्या करेंगे, उसको हम लोग डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे फॉर्म, तो जो भी परसेंटेज हुआ उसको हम लोग, जैसे 10% था तो 10 इंटू
इसको हम लोग 3.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, या फिर 360 डिवाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 36 डिग्री हो गया। और फिर इस 36 डिग्री को हम लोग पाई चार्ट में उसको हम लोग बना देंगे कंपास की हेल्प से, या फिर दूसरा टूल्स जो है मैथमेटिकल टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स है उसके हेल्प से इसको हम लोग ड्रॉ कर देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द pie charts, pie diagrams. I hope that you have understood everything, how to construct the pie diagrams, how to construct the pie charts. If there is any types of confusion, if you are not able to construct a pie diagrams, you can ask me questions in the online mode or in offline class. Okay, you are free to ask any types of questions related to pie diagrams. And it is suggested that you will do the practice in statistics. If you want to learn the statistics, practice is the most important things. If you are not doing the practice, you will forget everything. So learn the formula, know the formula, and use it, practice it. Okay, solve the problems of the statistics. So draw some pie diagrams, draw some other types of diagrams, so that you can understand it in better way. So this is all about today's class. Thank you.